Hello students, welcome in our geography class. Today I am going to start a new chapter of book 2nd and the name of the chapter is Human Settlement. Students, human settlement. Settlement means the living area, the residential area which is developed by human beings. So question arises here, why the human settlement developed? What is the need behind the development of human settlement? The human settlement is necessary for fulfilling the economic and the safety demand of human. सेटलमेंट का मतलब किसी एक एरिया में गैदर होकर के ग्रुप होकर के रहना और बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, राइट? ये बिल्डिंग्स, ये स्ट्रक्चर डेवलप क्यों करता है ह्यूमन बीइंग? ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं ताकि ह्यूमन जो है एक पीसफुल लाइफ जी सके और उसकी पीसफुल लाइफ जीने के लिए जो भी सप्लीमेंट्स है वो उनको उसमें स्टोर कर सके, राइट? बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर दैट this system is introduced very later. It means our earth having a vast history related with the human arrival. In the ancient time, the human is just a food gatherer and hunter. At that time, the human is not getting the settlement. He is not settled at a place. He is just roaming around the places. It means the human develop the temporary residential area according to requirement. But when human change their activities, when human turns into food gatherer to food producer, then he realize necessity of settlement. It means the settlement starts when human living civilized life. The settlement is the example of civilization. Students, do you know that the settlement vary in size and type? And they range from hamlet to metropolitan cities. आपको पता है जो सेटलमेंट होते हैं इनके साइजेस बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये छोटे छोटे हैमलेट से लेकर के बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक में देखे जाते हैं. With the size, economic characteristic and social structure of settlements changes and so do its ecology and technology too. और ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेटलमेंट में वो साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटिव होते हैं, बल्कि उन एरियाज में इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं एंड इवन इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. So settlement could be small and sparsely spaced. They may also be large and closely spaced. हो सकता है कि सेटलमेंट छोटे हो और बहुत ही sparsely spaced हो, बहुत इधर उधर फैले हुए हो, और ये भी हो सकता है कि सेटलमेंट जो है बहुत ही लार्ज हो और क्लोजली स्पेस्ड हो, घने बसे हो. So basically the sparsely located small settlements are called villages. जो sparsely located सेटलमेंट होते हैं उन्हें नॉर्मली हम विलेज कह सकते हैं. एंड दीज विलेजेस हैविंग द स्पेशलिटीज, दे आर स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज. सो द सेटलमेंट वेयर बेसिकली द ह्यूमन engaged in primary activities, that settlement are called village settlement, and in other words it is called rural settlement. Whereas on the other hand there are fewer but large settlement which are termed as urban settlement. And these urban settlements having the specializing in the secondary and the tertiary activities. It means if the people engaged in the secondary or tertiary activities, the area which they developed are known as urban settlement, right? So let us differentiate between the rural and the urban settlement. The rural settlement derive their life support for basic economic needs from land-based primary economic activity, whereas urban settlement depend on the processing of raw material. Rural settlement में जो लाइफ है वो टोटली डिपेंड करती है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से.
For example, agriculture, mining, dairy farming. These are some of the activities which is done in rural areas. Whereas in the urban settlement, the life depends on the processing of raw material and manufacturing of finished goods. And on one hand, and a variety of services on the other hand. एक तरफ से प्रोसेसिंग के वर्क होते हैं अर्बन एरियाज में, या फिर सर्विस प्रोवाइडर भी माना जा सकता है अर्बन एरियाज को. तो पहला डिफरेंस क्या हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का. प्राइमरी एक्टिविटीज जहां पर होती हैं वो रूरल एरियाज, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज जहां पर होती है दैट इज कॉल्ड अर्बन एरियाज, राइट. नाउ सेकेंड डिफरेंस, सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सिटीज क्या होती हैं, एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नोटिस होता है. They provide goods and services not only to urban dwellers but also to the people of rural settlement. Basically जो शहर होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले एरियाज होते हैं, और ये जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ अर्बन ड्वेलर्स के लिए नहीं बल्कि रूरल सेटलमेंट्स के लिए, हिंटरलैंड्स जो होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराते हैं. इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल. किसके बदले में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, फूड और रॉ मटेरियल्स के बदले में. तो फूड और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रूरल एरियाज से, राइट. सो दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब ये जो डिपेंडेंसी है सिटीज की रॉ मटेरियल के लिए रूरल पर और रूरल्स के फिनिश प्रोडक्ट के लिए अर्बन पर, ये डिपेंडेंसी किस तरीके से वेल कनेक्टेड है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा तो शहरों के बीच में और गांव के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रॉ मटेरियल का अर्बन एरियाज में, फिनिश प्रोडक्ट का रूरल एरियाज में, ये भी इजीली कन्वे होगा. अंडरस्टूड. नाउ द लास्ट डिफरेंस, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप. रूरल और अर्बन सेटलमेंट को सोशल रिलेशनशिप से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है. लाइक एटीट्यूड, आउटलुक. रूरल और अर्बन पीपल के एटीट्यूड और आउटलुक में बहुत फर्क होता है. रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट. कम मोबाइल होते हैं लोग, कम मूविंग होते हैं रूरल एरियाज के लोग, और इसीलिए इनका आपस का जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टिव होता है एक दूसरे से. जबकि अर्बन एरियाज में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ जीते हैं लोग, बहुत ही फास्ट लाइफ जीते हैं, और इसका सीधा से इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, सोशल रिलेशनशिप पर. आमतौर पर आप सभी जानते भी हैं कि अर्बन एरियाज में आस पड़ोस से भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, और रूरल एरियाज में अगर किसी एक घर में शादी होगी तो पूरा गांव उसमें लग जाएगा. ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, इस तरह की सोशल रिलेशनशिप की. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस कंसिडर द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. कितने तरह के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं. तो द टाइप ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया. टाइप्स ऑफ सेटलमेंट किस पर डिपेंड करते हैं, बिल्डअप एरिया पर एंड इंटर हाउस डिस्टेंसेस पर. इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेस इज अ रेदर यूनिवर्सल फीचर. आमतौर पर इंडिया के गांव कैसे होते हैं, एक कॉम्पैक्ट और क्लस्टर विलेज वाले होते हैं जहाँ पे कुछ 100 घर जो है वो देखने को मिलते हैं. यूनिवर्सल फीचर है ये, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न प्लेन. और हम बात करें बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन एरियाज की, जहाँ पर आपको गांव की संख्या ज्यादा मिलेगी. देयर आर सेवरल एरियाज विच हैव अदर फॉर्म्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. तो यहाँ जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है रूरल सेटलमेंट में, ये डिपेंड करता है कुछ रीजंस के ऊपर, और वो रीजंस जो इस सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर्स हैं. फिजिकल फीचर लाइक नेचर ऑफ टेराइन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कल्चरल फीचर और एथनिक फीचर इन विच सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन included. And the third, security factor in which the defense against thefts and robberies. These are some of the reasons, some of the factor behind the differentiative settlement.
So rural settlement in India can be broadly put into 4 types, and these are clustered, agglomerated, hamleted and dispersed. Let me continue. देखो मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा, किसी भी एरिया में जब हम लोग सेटलमेंट डेवलप करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है, हम कुछ चीजों को ध्यान में रख करके ही सेटलमेंट करते हैं. जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ वेरियस फैक्टर्स हैं जो इन सेटलमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. फिजिकल फैक्टर में नॉर्मली जब कोई सेटलमेंट डेवलप करता है तो ऐसे टेराइन की खोज करता है जहाँ पर प्लेन एरियाज हो, जहाँ उसको एग्रीकल्चर करना ईजी हो, जहाँ पे उसको इजीली वे ऑफ लिविंग मिल जाए. एल्टीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, कम ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक फिनोमिना वर्क करता है. वो फिनोमिना क्या है कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंडक बढ़ेगी. तो इसीलिए जो हाइयर एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पर लोग कम रहते हैं. फॉर एग्जांपल पहाड़ों पर, राइट. क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट होगा तो ज्यादा कवर मिलेगा सेटलमेंट को. अगर इजीली अवेलेबिलिटी होगी वाटर की तो भी ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे डेली वर्क से लेकर के एग्रीकल्चरल वर्क तक और इंडस्ट्रियल वर्क तक हर तरह के कामों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है. तो ये तो हो गए फिजिकल फीचर. अब बात करते हैं कल्चरल और एथनिक फैक्टर की. सोशल स्ट्रक्चर, अगर सोसाइटी अच्छी होगी तो भी ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है. ठीक है, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होगा. समटाइम आपने देखा होगा कि सेटलमेंट कास्ट या रिलीजन के बिहाफ पर भी होता है. कोई एक पर्टिकुलर कॉलोनी जो है कास्ट के आधार पर डेवलप हो जाती है, या कोई पर्टिकुलर एक एरिया जो है वो रिलीजन के आधार पर डेवलप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम्स जो है वो जो बे एरियाज है, खाड़ी देश जो है वहां पर सेटल डाउन है. फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, भूटान, these places are the good example of Muslim dominations, whereas Nepal, Bhutan, India, they are having good quantity of Hinduism, right? Christianity prevail in the Western countries. So these are some of the example of caste and religion. All right. Now the third one is security factor. Defense. If the defense system is well maintained, if defense is working against the thefts and the robberies, then the people are easily settled at that places. जहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ चोरी वगैरह नहीं होती होगी, लूट वगैरह ना हो, तो वहां पर ह्यूमन अच्छे से रहना पसंद करेगा. ठीक है, तो सिक्योरिटी और पीस भी जरूरी है. सो दीज आर द फैक्टर्स which is responsible for the settlement, and according to these factors the settlement can be classified into 4 categories: clustered, agglomerated or nucleated, semi-clustered, fragmented, hamleted and dispersed or isolated. So let me consider the first clustered settlement, but in our next video. Hope you understand the reason of settlement and the factors which affect the settlement process and even the types of settlement. Well, so later we discuss the rural differentiation of settlement, several rural type of settlement. All right, thank you and have a nice day.